Hi everyone, thank you for joining us. This is Meet the Toppers from Resonance. So glad you all are here. I can see a good amount of viewership already joining in. I can speak 2 languages, English and Hindi. So अगर आपको कोई भी question पूछना हो, आप हिंदी या English में पूछ सकते हैं. We have our students, guests for today. We have Anushka. Anushka, if you could, just 1 second, I'll just add you as a pin. So, hi Anushka, how are you? Yes, good. Hello everyone. My name is Anushka Singhal and I secured AI 291 in JEE Advanced. I'm currently studying in IIT Bombay Computer Science. Great to have you. Let me invite Harshal also. Harshal, and I'll certainly give them time कि वो अपना introduction दे पाएं. So please bear with me. Just give me a second. Hello everyone. I am Harshal Asod, and I have secured AIR 15 JEE Mains. I am in IIT Delhi right now, and I am pursuing electrical engineering. So that's all. Harshal, you might have to repeat because I'm just adding you to the pin. So now you would have to repeat yourself because you are not visible. So no worries, please. I will. So I am Harshal Asod, and I have secured AIR 15 JEE Mains, and I am currently in IIT Delhi, and I am pursuing electrical engineering. That's great. So IIT Delhi. Anushka, if you could really have your introduction also once again. Yes, good. Hello everyone. My name is Anushka Singhal and I secured AI 291 in JEE Advanced. I'm currently studying in IIT Bombay Computer Science. IIT Bombay Computer Science, the most looked out branch for. Now that's amazing. So glad to have you here, and I think so it would be, really fond, nostalgic memories of the struggle and the journey you guys had at Resonance. So, wonderful having you here. We have a good amount of participants today, and everybody, I'm seeing the list of questions. See, these are the nervy times we call it, because JEE Main is around the corner, and we will be giving ample opportunities to all our viewers to ask questions directly to them. So if you have any question, please raise your hand and you can ask the question directly to Anushka or to Harshal. Please mention your name and then you can ask your question. So in the meantime, we had sent a questionnaire to many of our viewers and they have asked some questions. So if you have a question, please raise your hand. I will unmute you and then आप अपना question पूछ सकते हैं. Just repeating it in Hindi also. अगर आपको कोई सवाल है, आप just raise your hand. इसका एक button होता है Zoom में, तो आप please raise your hand and आप अपना question पूछ सकते हैं जब मैं आपको unmute कर दूँ. Okay? ठीक है? So let me start with the questions that we have received from our emailer that we had sent out. The first question is from Mr. Samir Singh Jadon. So ladies first. So I'll ask Anushka to answer it, more appropriately. So the question from Samir is how you prepared for it at the last time, which is usually the most pressured time for us. So for JEE Mains, at the last time we were giving many exams of previous years as it is, and then analyzing these papers and finding out what are your weak topics, and that is the main point. Like you have to revise theoretical topics obviously, but मेंस के एग्ज़ाम दोगे उसमें वो करोगे क्या बोलते हैं एनालाइज करो उसको सबसे इम्पॉर्टेंट है. टेस्ट दो जितने भी नंबर आ रहे हैं आने, बट उसको एनालाइज करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. उसको एनालाइज करके अपनी मिस्टेक सुधारना, अगली बार वो सिली मिस्टेक ना हो. कोई किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है कि इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो उस टॉपिक को जाके रिवाइज करना है. ऑल दैट. So Anushka, one question which is a follow-up question to this. क्या सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है? सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है. मतलब अगर लाइक फॉर इफ़ यू आर क्वालिफाइंग फॉर JEE एडवांस है ना, तो सिर्फ क्वालिफाई करना इज़ अ मेन मोटिव. हाँ, अच्छी रैंक से क्वालिफाई करना इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग. तो उसके लिए मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ो और इजी से इजी क्वेश्चंस जितने मतलब हो सकते होते हैं, क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस तो वहाँ पे भी नहीं आएंगे, दिमाग में तो नहीं आएंगे.
तो इजी क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस है। वेरी नाइसली सेड। हार्ड क्वेश्चंस भाई वहाँ पे भी जब नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, डोंट बॉदर अबाउट इट। और उसके बारे में सोच के एंजाइटी तो मत ही लाइए। विच एक्चुअली ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर अमित पटेल। So his question is, and this question goes to Harshal, last 2 months pressure before the actual exam, how did you manage all that anxiety and the revision part, and have you doubted yourself in your selection? सो मैं अपनी बात अगर बताऊं अभी, तो ऐसा था कि लास्ट टाइम हम सिर्फ एग्ज़ाम्स दे रहे थे, अनुष्का ने बताया, तो उससे एक स्ट्रेटजी बना रहे थे हम कि इस तरीके से करेंगे, उस तरीके से करेंगे। तो अब क्या, जब आप कुछ काम करते हैं तो फिर ऐसा धीरे धीरे आपका जो बिलीफ होता है वो बढ़ता है अपने आप पर। तो इस तरीके से मैं मतलब ऐसा बिलीफ रखना चाहिए कि अपने आप पे बिलीफ रखो, जो होगा अच्छा होगा, अच्छा ही होता है वैसे भी। तो उस वजह से आपकी एंजाइटी थोड़ी सी कम होगी। तो मेरा ये था कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं करता था, और लास्ट के 2 महीने में रिवीजन इतना चलता है कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, ओके ओके। और हैव यू डाउटेड योरसेल्फ? बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दिस इज, यू नो, डाउट्स खैर आई मीन हर एक के मन में आते हैं, एंड it's always there. So I also am an IITian. I go way back, generations ago. I am a 2001 pass out from IIT Roorkee. सेल्फ डाउट तो हमेशा ही होता ही होगा, मतलब आप हमारे को बिल्कुल होता था, पता नहीं क्या होगा उस दिन, क्या होगा। एंड इट्स ऑल अबाउट टुडे। समटाइम्स यू स्कोर ग्रेट एंड समटाइम्स इट्स लाइक यार आज क्या हुआ, उससे कुछ हुआ ही नहीं, मतलब यू नो मे बी इट्स बैड फॉर एवरीबॉडी बट सम डेज आर बैड। आई मीन दैट्स हाउ इट इज। सो हर्षल, एनीथिंग अबाउट दैट? हैव यू डाउटेड योरसेल्फ? सेल्फ डाउट इस वे में होता था कि यार उस दिन क्या होगा, आगे पीछे का तो ज़्यादा नहीं सोचता था मैं कि उस दिन क्या होगा, उससे बहुत डर लगता था मुझे। तो पर ऐसा था कि अब जो होगा उसी दिन होगा। तो अभी जैसे मान लो आज डाउट हो रहा है, पर धीरे धीरे कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटी करके आज ख़त्म करा, वापस पढ़ाई में लगो। तो बीच बीच में जब ऐसा होता है तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग एक्टिविटी में कर लेता था। सो यार इमेजिन हर्षल and Anushka, I think so, Anushka was nodding her head, तो मुझे लगा कि हाँ she is also agreeing कि self doubt कैसे नहीं होता, बिल्कुल होता है। so think about it now ना, self doubt जब आप जैसे टॉपर्स को भी होता है तो बाकी सब जिन्होंने अभी अचीव नहीं किया है उनका क्या बोलें, मतलब you know it's possible. So we have the first hand raised by Mr. Shubham Gupta. Shubham, I am asking you to unmute and you can ask your question. Please please introduce yourself and ask the question who you are asking to. Good morning. Good morning. I am from Karnal. I am a 10th class student. So I have a question that what inspires you for studying, like जैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप से, तो क्या इंस्पायर करता है? Good question, Shubham. Very nice question. And you are asking this question to both of them, or how are you? Who do you want to ask this to? Both of them. ठीक है. So obviously, ladies first. Anushka. So ऐसा है, क्या बोलते हैं, मतलब स्टडी के लिए मोटिवेशन एक तो मेरे पापा थे ही थोड़ा, तो ठीक है, इज ए फैकल्टी ऑब्वियसली, तो ठीक है वो थे, उनको प्राउड फील कराना एंड ऑल दैट थिंग। दूसरा मोटिवेशन, क्वेश्चंस करते करते मज़ा अपने आप आने लग जाता है जब क्वेश्चंस होने लगते हैं, तो फिर वो लगता है कि हाँ नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी करना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन भी करना चाहिए, तो ट्राई करने में भी मज़ा आता है। हाँ, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस करने पे अगर वो नहीं होते थे लगातार तो डिमोटिवेशन भी आता था, तो फिर इजी क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो जाते थे दोबारा, कि वो होते हैं तो मज़ा आता है, करने में अपने आप इंटरेस्ट आता है। Nice answer, Anushka. Harshal, what about you? सर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे 2 तरीके रहते थे हमेशा कि मोटिवेशन कैसे आएगा। तो एक तरीका ये था कि यार इससे हो गया, मैं भी कर सकता हूँ, उस वे में करता था। और एक था कि यार ये मेरे से कैसे नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ तो उसमें मैं टाइम देता हूँ, वैसा करने का कोशिश करता हूँ। तो ये 2 तरीके तो हमेशा रहेंगे आपके सामने, तो उस वजह से आप आगे बढ़ते रहते हैं। और एक बार जैसे आप थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, मतलब आपको कुछ भी लीड मिली तो आपको एक खुशी होगी और आगे जाने की इच्छा होगी, फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, फिर और आगे जाने की इच्छा होगी, तो ये चलते रहते हैं साइकिल। शुभम, एक्चुअली पता है इन दोनों ने आंसर गलत दिया है।
आंसर ये है कि इन्होंने सोचा था कि ये मीट द टॉपर्स में आएंगे, इसलिए इन्होंने इतनी मोटिवेट रहे हैं ये लोग। तो मीट द टॉपर्स में आने के लिए ये लोग कि नहीं यार हमें मीट द टॉपर्स में तो जाना ही है। सो it's not a struggle, it's a journey, Shubham, and have fun with the studies that you're having, because मज़ा आता है जब एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना, चाहे इजी या टफ वो बाद में पता चलता है, बट इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व समथिंग इट गिव्स यू एड्रेनलिन रश, बड़ा मज़ा आता है, अरे यार अच्छा मेरे से हो गया, ग्रेट। बट पॉइंट इज क्वेश्चन होना चाहिए। और यू नो आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, he always used to say, I'm not intelligent, I'm really not intelligent, I stay with the problems longer। इस चीज़ को समझना, I stay with the problems longer, तो प्रॉब्लम का समाधान मिल ही जाएगा, that's not a problem। पर जितना टाइम हम उस प्रॉब्लम के साथ रहते हैं, we educate ourselves, we mold ourselves that if some similar pattern comes in future, we will be able to handle it better, because at the end of the day ये भी एक क्वेश्चन आया होगा, आई एम अज्यूमिंग, कि कभी कभी लगता है पेपर से निकलने के बाद, पेपर खत्म होने के बाद, अरे यार ये क्वेश्चन देखा क्यों नहीं, या वैसे क्यों नहीं सोचा, ये तो इतना इजी क्वेश्चन था। ऐसा होता है, ऐसा आई एम अज्यूमिंग सबके साथ होता है। सो अनुष्का, हर्षल, यू बोथ एग्री? Yes, sir. एंड इट हर्ट्स, लाइक अरे यार ये तो इतना इजी क्वेश्चन था, दिस कुड हैव बीन वंडर्स, बट क्या यार कोई बात नहीं। बट सर ये तो मेन से एडवांस के उसमें भी हो actually होता है। So Shubham, as I think so you got your answer, Shubham? Yes, sir. Okay, thank you. I have a question. One that which is best, online coaching or offline coaching for JEE? A good question. So I think so. I'll just reiterate your question. Should we go for an online coaching or an offline coaching? Is that your question? For JEE. For JEE Main. For JEE. Yes. Okay, only for JEE Main. There's no JEE Advanced. Yes. For JEE. Okay, okay. So Harshal, I'll let this. Yes, sir. If I want to answer this question, so what I feel is in offline coaching, जब हम offline coaching करते हैं तो जब टीचर आपके सामने हैं तो वो आपको एक डर रहता है उस टीचर का कुछ भी करने का। तो भले आपकी बैच साइज 200 हो तो भी हमारे मतलब कुछ फैकल्टीज़ हैं तो 200 बच्चों के बैच में भी एक को खड़ा करके अच्छे से डांट देते थे। तो ऐसा होता है कि ऑफलाइन कोचिंग में डर से आप पढ़ाई ज़्यादा कर पाओगे और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे डिसिप्लिन है। तो ऑनलाइन ठीक है, पर नॉर्मल केस में जो नॉर्मल सिनेरियो है उसमें ऑफलाइन कोचिंग में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप डिसिप्लिन रहेंगे थोड़ा सा। डिसिप्लिन रहेंगे, आई वुड लर्न समथिंग ऑन दिस। डिसिप्लिन के साथ साथ ऑफलाइन कोचिंग में टीचर के साथ लाइव डिस्कशन, फ्रेंड्स के साथ लाइव डिस्कशन में काफ़ी हेल्प होती है और आपस के डिस्कशन से काफ़ी हेल्प मिलती है। लाइक हमने भी काफ़ी किया है, हर्षल के नाम से हमने भी काफ़ी डिस्कशन किया आपस में, तो काफ़ी मज़ा आते थे मतलब उस डिस्कशन में, क्योंकि बिना टीचर से कई बार डाउट पूछने में अपन को प्रॉब्लम भी हो सकती है, फ्रेंड्स से इतनी नहीं होती। तो किसी भी दोस्त से पूछ लिया डाउट और फिर मतलब क्लियर कर लिया आपस में क्वेश्चंस पूछ के। और दोस्त जो बताएगा वो आपके पर्सपेक्टिव से बताएगा कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। टीचर कभी कभी जो सही मेथड है वो बताएंगे, पर कभी कभी दोस्तों से ज़्यादा फायदा होता है। हाँ मतलब दोनों चीज़ें हैं, वो तो डिसिप्लिन तो है ही। Okay, great. So I think so your verdict is offline coaching? Yeah. Okay. Okay. मेरा व्यू थोड़ा सा अलग भी है, पता है, मतलब अलग नहीं है, बट मेरा मानना है कि ऑफलाइन ही सही है। ये तो हम सब ने कहा। ऑनलाइन कैन बी लेवरेज्ड ओनली टू सॉल्व अ डाउट एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर, भाई हमारे ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन नहीं थे और ऐसे स्मार्टफोन तो भूल ही जाओ, खैर फ़ोन ही नहीं थे हम लोग। यू नो ऐसा लग रहा होगा कि कितने एजेड आदमी से बात कर रहा हूँ शुभम, बट प्लीज़ बेयर विद मी। Generally speaking, if at that point of time phones were there, तो मेरा सिलेक्शन तो नहीं होता क्योंकि मैं तो गेम ही खेल रहा होता। और ये प्रॉब्लम है, जेन्युइनली प्रॉब्लम है बच्चों की आजकल, क्योंकि एक इट्स लाइक एडिक्शन है ना। एक ऑब्वियसली जब आप गेम खेलते हो या कुछ भी करते हो तो आपको एक डोपामिन रश तो मिलता ही है, मज़ा आता है, अरे हाँ यार एक लेवल और पार कर लेते हैं, अगर ऐसा कर लेते हैं। बट यू नो व्हाट,
there is always a chance once you land up in IIT or NIT, you have forums, gaming forums भी होते हैं. So, you know, to be honest, I have been a gamer also for good amount of time. When I was in US for about good amount of time, so I was a gamer, or a professional gamer actually. So, you know, there are so many things that you can do, but this is the time where you can make a difference to your life. तो ये जो 2 साल की जो जर्नी है, 3 साल की जर्नी है, depending upon if you are in class 10th, this is very, very important. So, you know, make sure that you make good use of it, and बाकी life set हो जाएगी. It's up to you, right? So we have another, I am so sorry I might not be able to give your name correctly. Shravanthi? Shravanthi, I'm asking you to unmute. I've unmuted you. So if you can ask your question. I hope I pronounced your name correctly. Exactly, it's Visaj Shravanthi. Thank you so much for arranging this session. It's really helping us a lot. And Harshal, my question goes to you. As you know, IIT mains exams are around in the corner, next month. So Yes. I would like to understand what are the books other than your coaching material that should refer. इस टाइम पर मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई didn't use any book, so I was doing only previous year papers. So you can have previous year papers from Okay, for how many years? You start from the 2020, 21, 23 like that, or how? so in year 2022 I think there was 84 papers of JEE Mains, and collectively for 2 to 3 years you can get more than 110 120 papers, so that are way more than sufficient. You cannot do all the things. So we were like जो पेपर हार्ड थे थोड़े से या थोड़े से अच्छे लेवल के थे, उन सारे पेपर्स को हमने we were giving papers like sort of daily. We give 6 day week only JEE Mains previous year papers. So that's way I prepared. Shravanthi, if I could add, because I have seen them, you know, evolve in their journey with my myself. What they used to do was they used to give papers daily, and then there was a revision exercise in the evening. So it's like it's kind of having a very clear notion that when you actually have given an exam, you are reliving your exam in the evening. And that acted as a trigger memory. So you were kind of reinforcing and stabilizing yourself. Okay, I made this mistake, I thought it this way, and this is not the right way to think about it. So this reinforcement actually helps you and also acts as a trigger, calms your nerves. You know, there's anxiety on the day of the exam. So all this stuff is to reinforce so that, you know, they can perform on the day. Because at the end of the day, all these practice exams don't hold any ground or any plus or minus as such. But the day, the exact D-Day, it's kind of reinforcing their confidence level. We always say this just one line. Whenever in doubt, rush to the constant, and your constant is your training for the past 2 years. They have given, they've sacrificed a lot of time, not going out with, you know, on the marriages, not going out anywhere. But this reinforcement enables them to perform on the day at that level, and that's a huge factor. So just my 2 cents, if I could add. That's all. Yeah, thank you so much for the clarification. Sure, please. Going back to the questions that we have received, there's a question, very, you know, बहुत कम शब्दों में बहुत simple question पूछा है. The question is from Mr. Siddhant Singh. How do you revision effectively? So how do you revise effectively? And I would say Anushka, if you can answer this. Okay, sir. So revision के लिए मैं like I would say my perspective, मैंने क्या किया मैं वो बता सकती हूँ. ये ठीक है. मैं in general like अभी तो मैंने सुना इनऑर्गेनिक के काफ़ी टॉपिक्स हटा दिए हैं सिलेबस से, तो हम लोग तो इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान देते थे क्योंकि इनऑर्गेनिक मतलब ऑब्वियसली याद करने वाली थी. तो मैंने तो केमिस्ट्री पे लास्ट टाइम पे ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि केमिस्ट्री में तुम कम टाइम में लाइक 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है, एंड यू कैन स्कोर फार बेटर देन अदर दो सब्जेक्ट्स.
और उन दोनों सब्जेक्ट्स में लाइक तुम्हारी पहले इतनी प्रैक्टिस होती है इन जनरल, अगर तुम साथ के साथ चल रहे हो कोर्स के, तो इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे, हर टॉपिक इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे। हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी भी नहीं है अपन को, अगर अपने तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेरा केमिस्ट्री वीक था थोड़ा, तो मैंने केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया था। केमिस्ट्री को काफ़ी मतलब लाइक क्योंकि रट्टा मारने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है, तो वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन था। और फिर पेपर्स चल रहे थे तो क्वेश्चंस फिजिक्स मैथ्स के भी होते थे, डेली 30 to 40 क्वेश्चंस फिजिक्स के भी हो रहे हैं, 30 to 40 क्वेश्चंस मैथ्स के भी हो रहे हैं, और फिर उनको एनालाइज करना एंड देन उनको सॉल्व करना दोबारा। लाइक जेईई मेंस में तो ये भी होता है 25 मतलब 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं इंटीजर टाइप में, तो फिर वो बचे हुए 5 उनको भी आके करना बाद में पेपर के बाद, दैट इज इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। Very true. How much have the question papers जो resonance ने बना के दिए सारी चीज़ें, in fact we are giving away those question papers and the mock tests for as freebies. So if anybody is interested and in the WhatsApp community, just we'll be giving it out for free. So if you have if you really want to give those mock test papers, feel free. We'll do that. But now question back to you, Anushka and Harshal both. How much, what was the level of these papers? Were the papers really tougher than what it comes in JEE Main, or was it apt, or actually it was really good? They were absolutely perfect. मतलब JEE Mains का ही थ्रू होता है, JEE Mains के ही जैसा होता है जैसा एक्चुअल JEE Mains आता है। इनफैक्ट हल्का सा टफर ही होता है टू बी ऑनेस्ट। लाइक हमने तो पहले 2022 के भी कराए थे, हमारा 23 था, तो 2022 के प्रीवियस ईयर्स भी थे और रेजो के खुद के पेपर्स भी थे, तो दोनों काफ़ी सिमिलर से लगते थे, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस लगता नहीं था। रेजो के इनफैक्ट कभी कभी टफ ही लगते थे। Tougher is always better, see. मैं अगर ऐड करना चाहूँ इसमें, तो ऐसा था कि जब 2-3 महीने पहले बच रहे थे तब तक पेपर फिर भी आसान थे, पर जैसे जैसे मेंस अप्रोच कर रहा था तो उसके लेवल को, मेंस के लेवल को एग्जैक्ट मैच कर रहा था, और लेवल ऐसे उठाया था पेपर का कि हम इवोल्व हो पाए, मतलब हम खुद उस हिसाब से इवोल्व हो गए कि हाँ मेंस का ये लेवल है और हमें इतना करना है। और हमारे टाइम तो क्या, मतलब जैसे इनऑर्गेनिक है ना, तो उसमें एनसीईआरटी के बहुत सारे ऐसे कहीं से भी उठा के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो सबको भी रेजोनेंस ने अच्छी तरीके से ऐसा पेपर में कवर कर दिया था कि हाँ एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़नी है, 3 बार पढ़नी है, 4 बार पढ़नी है तो पढ़नी है। This is a very valid point. We are actually getting a few questions in the chat also. Shravanti has asked again, so whom should we approach for the mock tests? Shravanti, we can certainly contact you. In the WhatsApp community, we will be giving it out. So if I'm assuming you are already there in the WhatsApp community, if not, then just reach out anybody at Resonance, and we will be able to help you out. So need not worry about that. We'll be able to give you the freebies. It's practically actually free. So whosoever wants to give it, we'll certainly give it out. There's another question from Karan on the chat. He's asking, my question is whether timetable is important to crack the exam, or is it best to study without time? I mean, not without time, obviously time is a constant, but yeah, so I think so we got the gist of the question. So Karan Kumar Poddar, he's asked this question. Harshal, if you want to answer this, is timetable important? So I never made a on paper timetable, but I have a fixed time to do everything. So in the morning I was giving test papers, and afternoon after lunch I was analyzing the whole paper. What was the mistakes? What is the thing I can improve in this paper? And in the evening, so we were doing reading sessions like for students only. We were अनुष्का भी हमारे साथ थी, तो हमने डिसाइड कर रखा था कि इस टाइम पे हम बैठ के यहाँ पढ़ेंगे। तो एक टाइम टेबल बिना फिक्स करे फिक्स हो गया था हमारा कि मतलब ऑन पेपर तो मैंने कभी नहीं बनाया, पर वो हो जाता है अपने आप। जब आप बहुत दिन तक एक ही चीज़ करते हो तो ऐसा हो जाता है कि हाँ इस टाइम पे काम अपने आप होएगा, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं थी। This is exactly what you're saying is, this is how breakfast came into picture कि लोगों को आदत हो गई अच्छा सुबह उठ के नाश्ता करना है, लंच करना है, इवनिंग टी भी लेनी है, और फिर
So there are more questions coming in from the chat. I'll just take one question from this and then we'll come to the chat. I think so. Puneet is just Puneet Singh. He is asking the questions. Puneet, we'll come to your question in a minute. Okay. Okay. We have a question from Mr. Malay Verma. As very few days are left for JEE Main first attempt, what would be the strategy for a student who is struggling right now? Interesting. So इसके लिए तो लाइक स्ट्रगलिंग वही वाली चीज़ है कि क्वेश्चंस जितने से ज़्यादा जितने हो सकते हैं, और इफ़ अगर तुमने ज़्यादा कोर्स छोड़ा है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं किया, तो अभी इजी मतलब इम्पॉर्टेंट जिनका वेटेज ज़्यादा है एक तो उसमें उन टॉपिक्स पे ध्यान दिया जाए, उनके भी इजी क्वेश्चंस पे ध्यान दिया जाए. ओके अनुष्का, सो कैन वी टेक इट वेदर वी शुड प्रेफर एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट? बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं इसी से लेके जा रहा हूँ कि भाई मैंने कम कोर्स किया है. आई थिंक सो यू नो मले का जो क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. सो yes, I'm struggling. I have say finished 40% of my course. Okay, let's take 40% of my course. I may or may not have covered, but 40% of the course is complete. So as you mentioned in one of your previous answers, that chemistry is scoring. So जो भी memorization index पे जा रहा है, memorization के perspective पे, you can certainly go there, and that is even better. But then there is a conceptualization index also that has to be taken care of. तो अब 40% हम लोग इसको लेते हैं कि 40% इज अ बॉल पैक कि भाई आपको 40% तो स्कोर करो. 40% अगर मैंने किया है तो शुड आई गो ऑन अ अटेम्प्ट परसेंटेज और शुड आई गो ऑन अ एक्यूरेसी परसेंटेज कि मुझे ठीक करने हैं जो भी करें? एक्यूरेसी क्योंकि एक्यूरेसी इज फार मोर इम्पॉर्टेंट. मतलब सिली पूरा कोर्स आता होगा फिर भी तुम सिली मिस्टेक्स करके अपने नंबर बहुत पीछे जा सकते हैं. एंड सिली मिस्टेक्स आई अग्री होती हैं, बट जितने से जितना मिनिमाइज कर सको उनको बेस्ट है, क्योंकि एक्यूरेसी मेन की पॉइंट है. मतलब एक्यूरेसी और उस टाइम पीरियड में करना, लाइक 3 आवर्स के टाइम में उसको कंप्लीट करना. वेरी नाइसली सर. ओके हर्षल, यू थिंक्स द सेम वे? Okay, okay. So accuracy is the call. So just to give you a reference, सभी लोगों को, you know, if I were to have a talk session for NEET, that is not the case. पता है? The factual point is in NEET, till a point of time, attempt percentage is more important. So if you have not attempting about, I think so 70% or 65% of the paper, you actually are not going to get a seat. Because, and assuming that you have 100% accuracy, then also you might not get a seat. So the skew dynamics of analytics for NEET are very different. So coming from you two, I think so yes, JEE Main, I understand, accuracy is more important than attempt percentage. So that's even better. I'll just give... अगर राजस्थान की कट की बात करें तो 90% तो कट ऑफ जाती है सर नीट की ना. नीट में. हाँ, नीट इज वेरी डिफरेंट. तो नीट के बारे में सोचना, लाइक प्लानिंग ऑफ द पेपर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. लाइक अच्छा मुझे इस तरीके से पेपर देना है. सी I'll be coming to a personal question of mine later on. I'll just give more time to our viewers to really ask their questions. Chat bhi hai, and then I see another person raising their hand, and I see Shravanti also has raised the hand again. But I'll give the chance to Puneet. Let me find out because I'd promised him. Let me see. Where are you, Puneet? So my question is to both Bhaiya and respected Bhaiya and Dee, as I am an aspirant of 2024, so should I take live class, where did I, 1 second, it just got, sure, live class from onwards till main, or should I give maximum time only on problem solving? So from now till the JEE Main time, should I give maximum time for online classes, or should I go for problem solving now?
सर पहले मैं अगर आंसर करना चाहूँगा तो इसमें मेरा ये मानना है कि इस टाइम पे क्लासेस करना इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। मतलब आप पेपर्स भी करें और साथ में उसका जो रिवीजन है, पेपर से जो रिलेटेड रिवीजन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, कि पर्सनल स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। I think so. This is more of self time. I think so, right? I think so. Yeah. ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, ये तो हम सो मेरा पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ इससे पहले कि मेरे मतलब मेरे अंदर खुद एंजाइटी डेवलप हो रही है। सी हमारे टाइम पे जेई एडवांस या जेई मेन नाम का कुछ नहीं होता था। सो इट यूज्ड टू बी अ सब्जेक्टिव पेपर। सो व्हाट डू यू थिंक इज टफर, द वन दैट यू गेव और द सब्जेक्टिव पेपर, जिसमें स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते भी थे और कटते भी थे? So I think subjective is more tougher according to me, क्योंकि सब्जेक्टिव में होता है हमें मतलब लाइक कभी कभी होता है ऑब्जेक्टिव में तो कि क्वेश्चन मतलब पता है कि हाँ इसको इस मेथड से करें, बाय चांस हमारी कोई गलती हुई हो, है ना, एंड स्टिल वी गॉट द करेक्ट आंसर। ऐसा एक आध बार हुआ भी है। ये ऑब्वियसली चांस की बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए एंड होना भी नहीं चाहिए, बट ऐसा कभी कभी होता था। ये ऐसा लग रहा है कि अनुष्का इज लाइक सर आप मुझे मीट द टॉपर्स में दोबारा बुलाओगे नहीं अगर मैं आपका सब्जेक्टिव पेपर नीचे कर दूंगी। तो ऐसा बोलना चाहिए, देखिए आज की ताज़ा खबर, अनुष्का जो कि सीएस बॉम्बे में पढ़ रही है उसने कहा है सब्जेक्टिव पेपर्स ज़्यादा बेटर होते हैं। बट दैट्स they test you. I mean, I can tell you, I mean, I have given subjective papers and we used to be like, oh my God, literally, मतलब ऐसा लगता था अच्छा क्वेश्चन देके एक तो हालत खराब हो जाती थी। I can personally share, I remember when I gave the JEE paper, first 11 questions मुझे हवा ही नहीं लगी थी, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आया था। 12th क्वेश्चन में जाके लगा हाँ कुछ तो समझ में आ रहा है। But the irony was, जब मैंने पूरा पेपर कर लिया, जो अटेम्प्ट कर लिया मेरी तरफ से, एंड व्हेन आई केम बैक एंड रिविजिटेड दोज 11 क्वेश्चंस, मुझे लगा अरे ठीक है इतने डिफिकल्ट भी नहीं थे, बट दैट वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द एग्जाम, तो एंजाइटी होती है, एंड दैट वाज इट। बट एनीवे आई थिंक सो पुनीत, वी आंसर्ड योर क्वेश्चन। यू शुड गो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग राइट नाउ, स्पेशली गिविंग फुल लेंथ पेपर्स, very very important. This is the recommendation from both Bhaiya and Didi, so that's how it is. We have a lot of hands that have been raised, so I'll give Ishan, I think so you are up top. I've given you the access, you can ask your question. Ishan? Yes, sir. So, good morning. Actually, I am in 9th class now and I am aiming for IIT. Okay. I am learning CBSE syllabus. So, will not learning ICSE syllabus affect my IIT preparation? I don't think so. See, I know I'm answering this question, but just to give you a snapshot, in a way, set theory, maths में आती है ना set theory. So this is how it is. ICSE board or CBSE board are subsets of the entire JEE curriculum. So it's like the level of complexity is really high. You can choose the topics, but ICSE or CBSE affecting your chances of getting into cracking JEE main or JEE advanced? I don't think so. The level of complexity, the level of the syllabus as such is kind of taken from that. So I don't see that happening. That should not be a problem. So ICSE or CBSE doesn't matter. This is what I feel. Harshal, Anushka, because I don't think so. You both were from CBSE, so I have looked into ICSE. That's why I can say so. Ishan? I have one more question. Yeah. So actually, I said I'm in 9th class. So should I concentrate on preparation of IIT or should I concentrate on my academics more? Should you? So I think so. Let me reiterate your question if I understand it correctly. Your question is, should I actually concentrate on studies right now, or should I concentrate more on IIT? Am I right? Yeah. Harshal or Anushka, what do you think? सर मैं अगर बोलूँ तो इस टाइम पे जो 9th क्लास के जो कुछ ओलंपियाड्स होते हैं, जैसे नेशनल साइंस ओलंपियाड, ऐसे कुछ NSO वगैरह होते हैं, या बहुत सारे तरह के ओलंपियाड्स होते हैं, आप उनमें ट्राई करें।
वो ज़्यादा बेटर है कि आप अभी से IIT चालू करें। तो आप 10th में आएंगे तो 10th के लास्ट में आप शुरू कर सकते हैं, पर इस टाइम पे आप ओलंपियाड्स मतलब कुछ एग्जामिनेशन होते हैं बहुत सारे, आप उनमें ट्राई करें थोड़ा सा, वो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। मैंने भी ऐसे ही करा था। So Ishan, I'll just give you a sentence. You have to find out a problem in the sentence. For me to crack my exams, it is important how much I study. What is the problem in the sentence? How much I study? Yeah. What is the problem in the sentence? That only. How much do I study? Yeah. There is a problem in the sentence. The much is more. The much is not required. For me to get selected and crack an exam, it is important how I study. It's not how much I study. See, very important to understand this part. You have to develop the conceptual learning part, and you have to plan yourself that you studied something today and you remember it possibly for life. And you are able to apply that, what you have learned. Especially at class 9th, this is something that is very, very important for you to do. Okay? Okay, yeah. Thank you. Thanks a lot. I'll give an opportunity to Mr. Ankit Kumar. Ankit, I've asked you, I've unmuted you. If you can ask your question. Hello, sir. Hello. Sir, I want to ask that how many hours did you study in a day at the JEE time of preparation? Like that, before 3 or 4 months, like starting period of time, how much you study in a day, and after the JEE means, after the JEE means given to the exam, before the advance, how much did you study in one day? Anushka, Harshal. So इसका आंसर थोड़ा मतलब, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स डोंट मैटर एक्चुअली। जितना पढ़ रहे हो उतना एफिशिएंटली पढ़ रहे हो, इफेक्टिवली पढ़ रहे हो और कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, देन दैट इज़ मच बेटर देन नंबर ऑफ आवर्स तुम ज़्यादा पढ़ो और मतलब कुछ एफिशिएंट ना हो, वो इफेक्टिव ना हो। तो ऐसा है, मतलब मेन से पहले लाइक ठीक है, हमारा टाइम मस्ती में भी निकलता था, हम लोग मस्ती भी करते थे, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं करते थे, हाँ पढ़ते थे पूरे, मतलब ठीक है, पढ़ाई फिर अपना एक पार्ट बन जाता है, तो पढ़ाई के बिना फिर वो दिन भी नहीं निकलता है जब अगर अपन को इंटरेस्ट आने लगता है। तो पढ़ाई मतलब करते रहते साथ के साथ, पर हाँ ये है हर 2-3 घंटे में ब्रेक लेना ज़रूरी है। लाइक हर 2-3 घंटे में ब्रेक लो ताकि तुम्हारा माइंड रिफ्रेश होगा उससे। जस्ट एज आई कुड आंसर। और मेरा ऐसा था कि मैं डेली टारगेट सेट करता था, तो आज का ये टारगेट है मेरा, तो आज कितना भी टाइम लगे मुझे ख़त्म करना है, और कल का ये टारगेट है। कभी क्या होता है अपना मतलब अच्छा दिमाग चल रहा है, मतलब अपन अच्छे मूड में जल्दी ख़त्म कर देते हैं, तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो फिक्स हमारा कभी था नहीं, हम अनुष्का का भी मैं मतलब जैसे फिक्स तो कभी हमारा था नहीं, तो कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। अच्छा मतलब जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो चलने दो और ज़्यादा पढ़ लो, कि 10 घंटे हो गए कोई बात नहीं, अभी मूड है और ज़्यादा पढ़ लो। आज 8 घंटे हुए कोई बात नहीं, मूड नहीं है तो कल कर लेंगे, मतलब ऐसा कल तो नहीं है, पर हाँ कल पे नहीं डालना चाहिए कभी, पर करना पड़ेगा। लाइक हाँ, उसने जो कहा कि टारगेट कंप्लीट करना, टारगेट कंप्लीट करो, अगर जल्दी हो जाता है तो एक्स्ट्रा अगर पढ़ने का मन हो तो वो पढ़ो, ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो गया तो पढ़ो और टारगेट को एक्सटेंड करो फिर, तो वही वाली चीज़ है। Ankit, I'll give you a very simple way of thinking. जब मैं पढ़ाई करता था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। सो मैं I used to be I was into professional sports also. So मुझे ऐसा लगता था पढ़ने के टाइम के हिसाब से मैं 15 मिनट पढ़ता था और 15 मिनट सिंपली वो क्रिकेट की बॉल की नॉकिंग करता था। अच्छा ठीक है, जस्ट टू रिफ्रेश माई माइंड। अब वो 15 मिनट से कुछ होगा नहीं, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन वो 15 मिनट से जो एक क्रेविंग आती थी, और वो 15 मिनट को मैं आई जस्ट स्टार्टेड एक्सटेंडिंग इट 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, एन आवर। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, अगर आपको डांस करना पसंद है, आफ्टर एन आवर जस्ट गो एंड डांस। जस्ट इफ यू वॉन्ट टू लिसन टू म्यूजिक, जस्ट लिसन टू म्यूजिक, बट गिव रेस्ट टू योर आईज। तो बैठ के, अच्छा मुझे वीडियो गेम खेलना पसंद है, उसमें एक ही प्रॉब्लम है, मुझे आपके मतलब उसके आपके वीडियो गेम खेलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आंखें थक रही हैं, बिकॉज व्हेन यू एक्चुअली हैव टू स्टडी, यू एक्चुअली हैव टू सी समथिंग।
So whatever you are doing, just give rest to your eyes. और या फिर आपका हार्ट पंप हो रहा हो, जैसे यू नो व्हेन योर हार्ट रेट इंक्रीजेस, there is a specific hormone that is released which actually helps you really concentrate better. And this is not me, this is biology. So think about those lines. What we do generally is कि हमने आंखों को रेस्ट नहीं देते हैं, we go back to the same, अरे यार फेसबुक पे क्या आया है, या यू नो अच्छा इंस्टा पे क्या रील चल रही है, वो रील का टाइम पता चला, यू नो द टाइम इज गॉन. I'm pretty sure Harshal or Anushka might not have been in this world of reels ever. But अब हो सकता है हो गए हो, लेकिन they have never been in this world of reels. So make sure you just are not landing up to the mobile phone. अगर आप वो आपका पैशन है, आप उसको डिसिप्लिन का पार्ट लेके सकते हैं कि यार शाम को 9 से 9:30 मुझे दोस्तों से बात करनी है, या मुझे अपने सोशल नेटवर्क को सुधारना है, या देखना है कि किसी ने क्या लिखा है, कुछ मैसेज आया, वो देख लो. बट अदर देन दैट, गिव रेस्ट टू योर आइज. वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इफ यू कैन टेक समथिंग अवे. ओके, आई एम गिविंग द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू ओजल. ओजल, इफ यू. One more question. Okay, go ahead. I want to ask that in the entire phase of JEE preparation, could you face any backlog, and if you face that, how you recover from that backlog? अरे यहाँ तो बैकलॉग को बैकलॉग बोलते हैं, इतना भर भर के बैकलॉग होता है. वो बैकलॉग होता है, वो बैकलॉग नहीं होता है, वो बैकलॉग इतना भर के होता है भाई. That's how it is. बताओ भाई अनुष्का और हर्षल, बैकलॉग बताओ. अनुष्का, यू गो फर्स्ट. So इसमें तो ऐसा था 11th लाइक मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी 11th में, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, तो मेरा 11th का था थोड़ा बहुत बैकलॉग, जितना भी था. ठीक है, बट ऐसा है बैकलॉग के साथ उसको फिर ये नहीं कि बैकलॉग पहले कंप्लीट कर रहे हैं, आज का प्रेजेंट छोड़ दिया. पहले आज का प्रेजेंट कंप्लीट करो, फिर अगर टाइम बच रहा है तो बैकलॉग का थोड़ा सा पार्ट कर लो, जो भी करना है. लाइक तुम्हारे 3-4 टॉपिक्स छूटे हुए हैं तो एक टॉपिक उठा लिया, उसका सब पार्ट कर लिया, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए, तो उसके थ्रू. और फिर डीपीपीज हैं, डीपीपीज के थ्रू काफ़ी बैकलॉग क्लियर हो जाता है अगर उसके क्वेश्चंस रेगुलरली करो. क्योंकि अगर क्वेश्चन आ रहा है एंड तुम्हें वो टॉपिक नहीं आता है तो उस वक्त पढ़ने का तुम्हारे पास टाइम मिल जाता है, क्योंकि हाँ वो क्वेश्चन डिस्कस होगा क्लास में. एंड डिस्कशन मेन पॉइंट होता है कि डिस्कशन होगा क्लास में, तो वो होमवर्क भी कंप्लीट होता है, वो सब काम कंप्लीट हो जाता है. इन जनरल जिस चीज़ का डिस्कशन नहीं हो रहा होता वो कंप्लीट इन जनरल कम होती है. गोल्डन वर्ड्स अनुष्का, गोल्डन वर्ड्स, वेरी नाइसली सेड. भाई बैकलॉग को या बैकलॉग को कंप्लीट करने का तरीका अनुष्का ने बताया. दैट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ थिंकिंग. या आई मीन जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट को तो जी लो. हम लोग पास्ट में इतना ज़्यादा टेंशन लेते हैं पास्ट को लेके, अरे यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो प्रेजेंट भी चला गया, पता चला प्रेजेंट भी पास्ट बन गया, और प्रेजेंट को वो बैकलॉग, वही बैकलॉग हो गया, वो बढ़ता ही जा रहा है. सो अंकित, आई थिंक सो वी हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रेजेंट, राइट? ठीक है. So I'll give, I've asked Ojal to unmute, and you can ask, please ask your question, Ojal. Yes, sir. Ojal this side. I hope you can hear me well. Yeah, please. Sir, my question is that I'm moving from 11th to 12th, and I'll move in a month probably. I want to ask that what are some common mistakes that I need to avoid in 12th? Because in 11th, my improvement was pretty slow. I wasn't able to see results like go very high in a month. So how do I need to avoid some common mistakes in 12th? हर्षल. यस सर. तो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि होमवर्क को कभी डिले नहीं करना है. तो डिस्कशन हो रहा है, तो अभी जैसे पिछला क्वेश्चन में था कि डिस्कशन होगा तो उसमें आपको डिस्कशन में पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है. तो होमवर्क एक तो सबसे पहले पूरा रखना है. उसके बाद से टेस्ट का रिवीजन, जो आप एग्ज़ाम दे के आए हैं उसका रिवीजन उसी दिन, मतलब जैसे अगर एडवांस का है तो उस दिन तो मतलब ज़रूरी नहीं हो पाए तो अगले दिन, और मेंस का है तो उसी दिन आपको वो जो एनालिसिस है उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है. तो ये 2 पॉइंट थे जो मेरे 11th में कम थे, तो 12th में आके मैंने इन पे वर्क करा था कि होमवर्क और एनालिसिस. और अनुष्का कुछ मतलब जोड़ना चाहेगी? वही है, यही चीज़ है, दोनों चीज़ यही सही बोली है, बिल्कुल. आई वुड कम्प्लीटली एग्री. Ojal, you really have to really look into your dynamics, your discipline
It's about you. It's not about Harshal or it's not about Anushka. It's not about me, Ajay. No, it's not. It's about you. You have to identify what works for you, what does not work for you. It's very important. It might be a very simple snapshot of like, just starting like a simple NCERT reading while you're having your breakfast. Things like that. Or a simple, just having if you're having tea, just going through, okay, let me just go through NCERT books or something like that, anything. You never know what might strike you that might give you those 4 precious marks in JEE Main. You never know. So just engage yourself, give yourself better opportunities and more opportunities to be exposed to the world of studies, or I would say the whole dynamics of how you can make a difference. So that is what would be the suggestion. And on the same lines, it's about you. Nobody can make a difference other than you. We can suggest what we have lived or we have gone through, but we do not know, and we cannot live your 24 hours. Your 24 hours are yours. So make a difference out of that, but stick to a discipline. Stick to something that makes it work. If you're, as you rightly said, month-wise your progression is relatively slow. Try to identify how that progression happened in the positive direction and think on those lines, and then think positively how I can expedite this so that this progression is faster. Okay? I'll be giving... Yes, sir. Thank you so much for answering. Thank you, Ojal. Thank you. I'll be giving the opportunity now to Pranav. Pranav, I'm unmuting you, requesting you to unmute and then ask your question. Yeah, Pranav, you're audible. Please ask your question. So I just know that how do we excel the subject maths? I don't get the subject maths. This is a very important question. I can see a lot of questions that our viewers have already asked for maths. Okay, go ahead, Harshal or Anushka. This is like a tougher one. So this is actually like I could not relate with it much क्योंकि मेरी maths starting से सही थी. I could say thanks to my father. तो ठीक है, तो इस वजह से मेरी मैथ स्टार्टिंग से ही सही थी, तो मैं इतने ज़्यादा, बट आई वुड सजेस्ट कि हाँ जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो, वही वाली पॉइंट है, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना एक्सपीरियंस मिलेगा. लाइक मैथ्स में हर क्वेश्चन की अप्रोच नहीं होती है इन जनरल, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा अप्रोचेस मिलेंगी तुम्हें. तो तुम कोई नया क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें कोई सी भी अप्रोच ट्राई कर सकते हो, क्या पता कौन सी अप्रोच लगाई हो. लाइक एक क्वेश्चन था जे एडवांस में जो इतनी इजीली दिमाग में आना इजी नहीं था, मतलब बट इट क्लिक मी इन द एडवांस पेपर, एक्चुअल पेपर. और एक आध क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इजी थे फिर भी नहीं आए, मतलब उनमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, कुछ कर दिया. तो वो वाली चीज़ है, इसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा अप्रोचेस मिलेंगे. और हर्षल कुछ कहना चाहे? मैंने तो इसमें गधा मजदूरी कर दी थी, मतलब काफ़ी बेकार थी. तो आई यूज टू लाइक सॉल्व द सिंगल शीट 2 टाइम्स. मतलब मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनकी शीट भी 2 बार सॉल्व कर ली थी. बहुत मजदूरी करी इसमें, तो तब जाके डिसेंट लेवल पे गई थी मैथमेटिक्स. और हाँ, बता दूँ कि जेईई मेंस में 100 परसेंटाइल था मैथमेटिक्स में मेरा. तो मेहनत मतलब हार्ड वर्क बहुत लगता है मैथमेटिक्स में. आपको अलग अलग तरीके के सेम क्वेश्चंस को भी अलग अलग तरीके से जब प्रेजेंट कर देते हैं तो दिमाग में नहीं आते हैं. So Pranav, I'll give you a snapshot of how, so I have studied from one of the legends in mathematics, late Bansal sir, way back. So I've studied from him directly. It used to be like a table. Now what I would suggest is, I know Harshal haath jod raha hai, but yeah, he was amazing. He was, so mathematics was a subject. Now see, the core problem with the mathematics today when I see the newer generation is, the basics from classes 8th, 9th, 10th are not synchronized in your mind. So what happens is, you studied 8th class और उसका कुछ पोर्शन छूट गया, और एक्चुअली स्कूल्स छोड़ देते हैं, अरे यार इतना टाइम नहीं है हमारे पास, छुट्टियां बहुत हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है. As a result, what happens is, those core concepts you have not known, not practiced. The mathematics today in the schools are more terminology oriented. You have to do this division by LCF method or this method or that method. Are you able to do it or not? That's a bigger question. The core concepts from the get-go, if they are very accurate and you are thinking in the right direction, I'm not exaggerating.
I have seen students of class 11th and 12th not able to understand what LCM is. I mean, we have been studying LCM, and then when you say, take LCM of this algebraic expressions, you are like, blank face. And the teachers are able to make out that, okay, this is whatever I'm speaking. So what is mathematics? Okay, what is mathematics? Mathematics is a language of, is actually a language. It's like Hindi or English, the way we talk. It's mathematics. And why was it devised? So that mathematicians can talk by not telling, oh, this, I mean this, or I mean cube root. Cube root is cube root. I mean, I don't have to, if I start explaining what is cube root or what is square root or what is square or what is, then it's like the entire conversation would only dwell into just discussing these things only, right? The core thing is the terminology the maths is presenting in front of you. It's a language. It's something you can, see, what is the difference between a talent and a skill? Talent is God-given. Skill can be acquired. Maths is a language. You can improve in your mathematical understanding. You might not be able to improve on your conceptual learning in the constructive way, but mathematics is something that practice will make its toll, and it's just, you have to do it. Simple. If you are not doing it, as Harshal rightly said, if you are not doing it, don't complain. You have to do it. It's as simple as that, and you will see the difference all along. Okay, giving. Okay, thank you, Pranav. Giving opportunity to Ashutosh Dubey. Ask you to unmute, please. Please ask your question. Hello, good morning, sir. Good morning to you, Ashutosh. Sir, I am in Kota, studying class 12. सर ऐसे बताइए कि वो क्या जेएमएस एकदम दौर पे है। सर मेरा ये डाउट है सर, अभी आता हम लोगों का भी 12th में हम लोगों का भी टेस्ट चल रहा है। अभी टेस्ट सिलेबस चालू है मेंस के लिए मॉक टेस्ट। सर उसमें टेस्ट सिलेबस मतलब टेस्ट सिलेबस में मिल चुका है, तो उसका सर हमें सिलेबस मिला है। सर हमें ये समझ नहीं आ रहा सर कि मैं बैकलॉग है मैं उसको उस पर ध्यान दूँ या फिर जो टेस्ट आ रहा है मैं उसके सिलेबस प्रिपेयर करूँ। अब इस वक्त वेरी डिफरेंट क्वेश्चन थोड़ा सा कि बैकलॉग जो है वो तो हो गया। अब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाऊं या मतलब मैं जो टेस्ट हैं उनके लिए प्रिपेयर करूं, टेस्ट अपना बेस्ट दूं, या बैकलॉग मतलब पुराने टॉपिक्स हो जाए। जो मुझे आते हैं उन पे कंसंट्रेट करूं या फिर कुछ बैकलॉग सकता है उन पे ध्यान दूं, उन पे कंसंट्रेट करूं। मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि अगर बैकलॉग ज़्यादा है तो जो टॉपिक्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हैं उन पे ध्यान दो, और अगर एक आध ईजी टॉपिक है बैकलॉग में तो उनको थोड़ा और मतलब उनको ईजीली कर सकते हो क्योंकि तुम कम टाइम में भी। एंड इफ़ योर बैकलॉग इज़ नॉट मच देन यू कैन डू कंप्लीट योर बैकलॉग ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस टेस्ट। मतलब इन टेस्ट में जो सिलेबस आ रहा है उसको पढ़ो, उसमें अगर कोई टॉपिक तुम्हें नहीं आता है तो वो तुम्हारे पास मौका है उस टॉपिक को कंप्लीट करने का। थोड़ा सा तो मतलब एटलीस्ट बेसिक आइडिया ले लो ताकि उसका बेसिक क्वेश्चन हो जाए, नॉट हायर लेवल क्वेश्चन बट एक बहुत इजी सा और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो जाए। मेरे हिसाब से सिलेबस देने का मतलब ये रहता है कि उन टॉपिक्स में से कम टॉपिक्स हैं अभी, तो उन टॉपिक्स में से जो कुछ बच गया छोटा मोटा तो आप वो कवर कर पाएँ। बाकी अगर ज़्यादा बच रहा है तो उस हिसाब से ये देखना चाहिए कि टेस्ट में हम मार्क्स कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो छोटे मोटे टॉपिक्स से आप बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। मेंस में तो ऐसा होता है कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं पर वो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी एक ही टॉपिक से, तो आप उधर ज़्यादा ध्यान दें अभी, मतलब बैकलॉग से ज़्यादा उस पर। टू समराइज, वुड दिस बी बेटर कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में पेपर सॉल्व करिए, अगर वो क्वेश्चन आ रहा है तो उस बैकलॉग के ऊपर चले जाइए एंड देन जस्ट इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है समझ में आया, अटेम्प्ट करके देख लिया। आई थिंक सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अनुष्का एंड हर्षल बोथ आर सेइंग। तो दोनों चीज़ें हो गई एक तरीके से। सो यू आर किलिंग 2 birds विद 1 stone। ठीक है आशुतोष? ओके, सो वी हैव वेरी लेस आशुतोष। ये सर मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर मैंने मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने बहुत तैयारी की है, पर सर ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस मतलब बनते नहीं है। मतलब मैं क्वेश्चन सीट के क्वेश्चंस लगाता हूं, एक्सरसाइज 1 बन जाता है, एक्सरसाइज 2 बन जाता है। तो मेन प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3 में आता है। मतलब एक्सरसाइज 3 में जो पीवाई की रहती है जीएमएस के उसको करने में बहुत हर्डल्स आते हैं। मतलब एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 बन जाता है पर मुझे कभी सोचना मतलब ये जो रेजोनेंस का ये सीट है ये मेरे से मैच नहीं कर रहा पीवाई की से। मतलब एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 बन जाता है सर, पर पीवाई की बहुत प्रॉब्लम आता है, हर्डल्स बहुत रहते हैं इसमें। अनुष्का का के पास बहुत अच्छा जवाब है। और दूसरा सर की प्रॉब्लम क्या है कि मतलब ऑर्गेनिक में रीजंस बहुत आते हैं सर, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड रेशियो इज बहुत। अब उसमें कोई पेपर में सर उसमें कोई S1 करा रहे, कभी किसी में E1 करा, E1
सर मतलब कभी नहीं पता कि मतलब कौन सा प्रिपरेशन करना है। आशुतोष ऐसे बन गया इस पे क्वेश्चन तुम्हारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है। बहुत ज़्यादा देखो मैं क्लियरली से मैं अभी तो उस समय भी पूरा ऑर्गेनिक वापस स्टार्ट कर दिया हूँ पढ़ना। नहीं, that is not what we are recommending or that is not what we are suggesting. See, I think so. एक्सरसाइज 3 पे जाना है। जेई मेन के लिए एक्सरसाइज 3 कितनी ज़रूरी है कितनी नहीं है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट आर यू एबल टू मैकेनिज्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आई थिंक सो अनुष्का एंड हर्षल वुड रियली हेल्प यू आउट मोर, बट आई थिंक सो योर प्रॉब्लम्स आर मोर जेनेरिक रादर देन पिन पॉइंटेड, मुझे ऐसा लगा। बट अनुष्का? सर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने ऑर्गेनिक में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इसने बोला आशुतोष ने, बिल्कुल सेम तरीके से कि कभी कोई मैकेनिज्म लग रहा है, कभी कोई मैकेनिज्म लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है और क्वेश्चंस नहीं होते। तो ऑर्गेनिक में भी मैं यही बोलूँगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप एक्सपीरियंस आता है वो एक, कि हाँ इस क्वेश्चन में ये चीज़ लगेगी, इस क्वेश्चन में ये चीज़ हो रही होगी। लेकिन कभी कभी तो हम लोग खुद आपस में एक दूसरे को बता रहे होते थे डाउट, बट लॉजिक नहीं पता, बट ये हो रहा होगा, क्योंकि कभी कभी होता था लाइक प्रॉपर लॉजिक नहीं पता, क्योंकि वो उसमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन ये ऐसे ही सॉल्व हो रहा होगा। तो इसके अलावा तो हर्षल जो बोलना चाहे। आशुतोष, द वर्ड इज एक्सपीरियंस, सो प्रैक्टिस, दैट्स द आंसर। गो अहेड डू सम, है ना? ठीक है, ओके। चित्रमणि? Yes, sir. Go ahead, please. Yeah. Sir, I am speaking with you. सर मेरा फिजिक्स में डाउट है। सर मैंने लास्ट डे 6 आवर का फिजिक्स का लेक्चर दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी का, पर लेकिन उसके बाद भी मैंने एक क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं लगा पाया, ऐसा क्यों? सर ऐसा मुझे बहुत डाउट है फिजिक्स में पिछले बहुत दिनों से। 6 आवर्स का लेक्चर के एक साथ? हाँ, और फिर सर उसके बाद क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं लगा उसका सर। यार 6 आवर्स का लेक्चर करने के बाद तो नींद ही आएगी। नहीं आएगी सर, नहीं आएगी, टेंशन में नहीं आएगी सर यार, क्योंकि फिजिक्स में इतनी दिक्कत है सर कि बता नहीं सकता मैं सर। मैं क्या बताऊं, मतलब इट्स लाइक तुमने 6 आलू के पराठे खाए उसके बाद नींद ही आएगी। नहीं सीरियसली, अरे यार 6 घंटे लगातार लेक्चर कौन सुनता है? मैं तो मतलब मैं सुन नहीं सकता लेक्चर 6 घंटे। मैंने जिंदगी में कभी सॉरी नहीं, हम मान रहे हैं, हम हमारी तुम्हारी प्रॉब्लम को डाइसेक्ट भी करते हैं। द पॉइंट इज चीज़ों को छोटा रखो। मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, और मैंने क्वेश्चन इसलिए ले लिया, आज की जनरेशन यूट्यूब पे वीडियो देखती है, ठीक है, मूवी 3 घंटे की आराम से देख लोगे, लेकिन जब वो कंसेप्चुअल वीडियो आता है ना, तो शुरू के 2 मिनट में डिसाइड हो जाता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, हवा ही नहीं लग रही, वहीं रोक दो भाई वीडियो को, आगे भी कुछ नहीं समझ में आने वाला। सर लेक्चर में सब समझ में आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन हाँ, so now your question is pinpointed. तुम्हारी प्रॉब्लम इज कि जो टॉपिक तुमने पढ़ा है तुम उसको ब्लेम कर रहे हो कि सर मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, लेकिन मुझे टॉपिक का क्वेश्चन को पढ़ के मुझे उसके डिसाइफर करके एक इक्वेशन बनाने की प्रॉब्लम बन रही है मेरी। एम आई गेटिंग समवेयर? मतलब मैंने क्वेश्चन की जो इंग्लिश थी वो इतनी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी पे थी दैट आई वाज नॉट एबल टू कम डाउन टू अ लेवल ऑफ इक्वेशन जिसमें मैथमेटिक्स लगेगी और मैं सॉल्व कर लूंगा, या तो क्वाड्रेटिक बनेगी या 3 डिग्री की बनेगी या जो भी बनेगी, बट आई वॉज नॉट एबल टू कम फ्रॉम अप्लाइंग की जो मैंने पढ़ा है, जो टर्मिनोलॉजीज मैंने शायद 6 घंटे के लेक्चर में तुमने सुनी होंगी, तुम्हारा वो मेमोराइजेशन हुआ ही नहीं कि उन टर्मिनोलॉजीज का, दैट यू आर एबल टू क्रिएट दैट इक्वेशन दैट विल एक्चुअली सॉल्व एंड गिव यू एन आंसर। ये प्रॉब्लम है तुम्हारी, एम आई राइट? ठीक है अनुष्का, आई थिंक सो दिस इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। सर इसमें ऐसा है कि लाइक जैसे उसने बोला 6 घंटे का, पहले तो आई वुड प्रेफर टॉपिक की जगह सब टॉपिक लो, सब टॉपिक कंप्लीट करो, उसका क्वेश्चंस करो, उसकी प्रैक्टिस करो। एंड अगर क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लाइक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा इसमें कि कैसे करना है, तो आई वुड से सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं शीट्स में भी, तो उनको एक बार पढ़ो, उनको एक बार सॉल्व करो, लाइक कि हाँ इसमें ये दिया है, अच्छा इसमें ऐसे सॉल्व कर रखा है, फिर क्वेश्चन पर गए, अच्छा इसमें वही चीज़ दी थी जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल में दी थी, तो इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं।
लाइक मैं ये काफ़ी ज़्यादा करती थी सॉल्व एग्जाम्पल से के थ्रू समझना. कभी कभी होता है टीचर्स समझा देते हैं, क्लास में समझ आ जाता है, बट वैसे नहीं आता. खुद के क्वेश्चंस करने बैठो तो नहीं होता. तो मैं सॉल्व एग्जाम्पल्स पहले करती थी एंड फिर उस पर जाती थी. सोल्ड एग्जाम्पल को डाइसेक्ट करना जरूरी है कि हम सोल्ड एग्जाम्पल में हमारे को ये देखना जरूरी है कि इस स्टेप तक हम जा पा रहे हैं, इस स्टेप के आगे नहीं जा पा रहे हैं. तो जो स्टेप नहीं जा पा रहे हैं उसको समझना जरूरी है. केवल ऐसा पूरा वापस समझ लेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होता है. वो भी नहीं कि हम पूरा नहीं समझना कि लाइक हाँ मैं इतना पढ़ना है, जो टॉपिक वीक है उसी का पढ़ना है. और वैसे भी तो जैसा उसने बोला कि स्टेप मेन है कि कहाँ पर हम अटक रहे हैं, कहाँ अटक रहे हैं, वो आइडेंटिफाई बहुत जरूरी है करना. चित्रमणि, लेट मी ऐड समथिंग, राइट. होता ये है कि व्हेन यू आर स्टडिंग अ टॉपिक, तुमने उस टॉपिक के सारे फॉर्मूलेस कर लिए, सब कुछ कर लिया. प्रॉब्लम ये टॉपिक है ही नहीं, प्रॉब्लम कोई और टॉपिक था या कोई और बेसिक नॉलेज थी जो तुम्हें है ही नहीं, जिसके बेस पे तुम वो इक्वेशन ही नहीं बना पा रहे. प्रॉब्लम कहीं और थी और तुम एक्चुअली तुम्हें लग रहा है मैं इस टॉपिक को कोस रहा हूँ, मुझे ये टॉपिक नहीं आता. ये टॉपिक तो तुम्हें आता है, इसके सारे फॉर्मूलेस तुम्हें आते हैं, सब कुछ आता है. प्रॉब्लम इज तुम्हें डिसाइफर करना नहीं आ रहा, कुछ और किसी और टॉपिक के बारे में नहीं आता. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर पॉइंटिंग द गन एट समथिंग एल्स, जबकि वहां पे एक्चुअली है ही नहीं. प्रॉब्लम ये भी हो सकती है. सो ट्राई टू डिसाइफर द फर्स्ट स्टेप. इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द फर्स्ट स्टेप ना, कुछ नहीं होगा. We are just about to close. It's already 12:01. So one last question. I am asking Mohammed Shoaib. I am unmuting them. All the questions that are there on the chat, we will try to answer them. Okay? I have unmuted you, Mohammed Shoaib. Last question for the day, and we would be closing out. But we'll be answering your chat questions. Go ahead. Good afternoon. Good afternoon. So my question is that how to revise the physics before the weekly test. So that happens in 21 days in the resume. So because in chemistry we can revise the notes, in maths we can also see the procedure of the question. But sir, in physics it is not certain that we can see any procedure or sir we can see any some notes, because sir in physics the questions are totally different from the notes question and from the test questions. सर अगर मैं आंसर करूं इसको हाँ, तो ऐसा है कि इसमें हमारे को हमेशा, मतलब RK सर ने भी कई बार कहा है और सारे टीचर्स भी कहते हैं कि फॉर्मूलेज आपको बाय हार्ट रटे हुए होने चाहिए फिजिक्स में, कि फिंगर्स पे होने चाहिए आपके फॉर्मूलेज. अगर आपको सारे मतलब एग्जाम्स के जस्ट पहले आप फॉर्मूलेज लेके जा सकते हैं. और दूसरा, आपको सारे सब टॉपिक्स पता होने चाहिए हर एक चैप्टर के, कि इस चैप्टर में ये सब टॉपिक है, अब इसके 3-4 फॉर्मूले हैं, फिर इसके बाद ये टॉपिक है, इसके 3-4 फॉर्मूले हैं. तो जब आपको पूरी टाइमलाइन पता, मतलब पूरी एक वो पता होगी कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो आपको स्ट्राइक बहुत जल्दी करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसमें ये वाला लग रहा है, ये क्वेश्चन है तो इसमें ये वाला लग रहा है. तो ऐसा करते थे, मतलब टीचर्स बोलते थे ऐसा और हम करते भी थे. मोहम्मद शोएब, मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा. सो हर्षल एंड अनुष्का दोनों ने ये चीज़ करी है. जो थ्योरम्स होती थी उनको ये लोग खुद करते थे, भूलने के बाद करते थे वापस कि यार, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आपको स्टडी मटेरियल में पढ़ाया भी जाता है ना, वो एक पोस्टुलेट लेके पढ़ाया जाता है कि अच्छा ऐसा है, इसके बेस पे आपकी जो रेगुलर नॉलेज है उसके बेस पे आपके फॉर्मूला डिराइव होता है. करेक्ट? ठीक है. आपको यही जर्नी क्वेश्चन में भी करनी है. और हम लोग कभी कभी इस चीज़ से कतराते हैं. मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि हम लोग सब्जेक्टिव पेपर देते थे. अगेन गोइंग बैक टू द सब्जेक्टिव पेपर, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी यूज्ड टू डू. वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, द कोर प्रॉब्लम्स इज समथिंग जो आपके पास ऑलरेडी रहेगी. आपको जैसे हर्षल ने कहा ना, आपको ऑलरेडी पैटर्न दिख जाएगा. ये पैटर्न रिकग्निशन थ्योरी है. आपको ऑलरेडी पैटर्न दिखने लग जाएगा. अच्छा मुझे यहाँ पर ऐसा करना है, यहाँ पर ऐसा करना है, अच्छा. और क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही पता चलने लग जाएगा. ओ दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट इज. ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट इट दैट वे. ठीक है. और थ्योरम्स करो. इट्स लाइक सिंपल, जैसे एडिशन है, मुझे बताना नहीं पड़ता ना 2+2 क्या है. ठीक है. सिमिलर चीज आपको वैसे सोचनी है कि थ्योरम्स को करते रहोगे, आप एक फाइनल फॉर्मूले पे अराइव करते हो. जब आपको वो एक ड्रिल पता है तो आपको सोचना भी आ गया, अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्यों किया था. इसीलिए एच.सी. वर्मा की बुक, हमारे टाइम पे एच.सी. वर्मा की बुक बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, शायद आज भी होगी. उसमें जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है ना, वो आपको ये सीक्रेट्स बताते हैं. वो अच्छा एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कैसे गया, अच्छा मुझे क्या नहीं पता कि मैं नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पा रहा. थिंग्स लाइक दैट, राइट. सो जस्ट ट्राई दैट. दिस विल इंप्रूव योर फिजिक्स बाय अ ह्यूज मार्जिन. बहुत मार्जिन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही रूल अप्लाई होता है. एक्चुअली आपको वही मैकेनिज्म्स खुद सोचना पड़ता है. अच्छा हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ सेम चीज है. और अब आप सोचोगे तो यही एक
डिसिप्लिन का भी पार्ट है कि अगर आप ये करते रहोगे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? With this, we come to the conclusion of the first episode of Meet the Toppers. We'll keep on bringing more such events, ठीक है? And you'll get opportunities to ask questions again. I hope you liked the way we presented it. And thank you all for joining. It was wonderful having you as an audience. Have a nice day. Bye-bye.